Hello everyone, my name is Charandeep Singh. Welcome to my channel. Hi. So last class had a key topic C, that is real numbers. We have done SCF and LCM of real numbers. Some examples on SCF and LCM. So the most important topics complete हो चुके हैं. दो topics ये. First is SCF and LCM, simple तरीका prime factorization. Second we have fundamental theorem of arithmetic. Now दो topics जो main रह गए complete करांगे. First is irrational number. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਹੈਵ some numbers, some examples on again SCF and LCM. Okay, the main examples we can say to papers आने chances ने कि किसी चीज़ की पावर अगर n है, n means natural numbers, तो p over 0 and हो सकती है कि नहीं हो सकती. That is again on prime factorization. So start करिए क्लास में. Okay, so first सबसे पहले SCF LCM में चलते हैं बिकॉज सेम का टॉपिक कवर होगा. जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी प्लीज लास्ट क्लास देख ले, देन इस वक्त आगे. द फर्स्ट टॉपिक इज if they say show that 12 power n cannot end with 0. First thing is statement, the key meaning है. We are saying show that 12 power n cannot end with 0 where n is natural number. So see natural numbers कर चुके हैं already. Natural numbers means जो 1 तो start हो रहे हैं, that is 1, 2, 3 up to so on. So according to this statement, 12 power n cannot end with 0 means अगर 12 की power n means कोई भी natural number हो गई तो उसका end ਵਿੱਚ 0 नहीं आ सकता. means ones place से कभी भी 0 नहीं आ सकता after solving. So ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ solve कर सकते हैं? वैसे basically देखा जाए तो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो वैसे 12 की power 1 fill करिए. 12 power 1 is 12. 12 power 2 is 144. Then again 12 power 3, 12 power 4, 12 power 5. So ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਲਾਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ 2 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਸ ਹੋਣਗੇ. ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ. ਓਕੇ, so first thing in this solution you have to do prime factorization of 12. Prime factorization of 12. So करिए क्या आ रही है? 12 is 2 into 6, then 2 into 3, 3 into 1. So prime factors are 2 multiply 2 multiply 3. So ये आपके तीन prime factors आ गए. So 12 power n is equal to 2 into 3 power n. ਅਸੀਂ इस तरह लिख सकते हैं ना, 12 पावर n is equal to 2 into 3 पावर n, राइट? ये लिख सकते हैं. तो देखो अगर 2 गुना मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 4 3 are 12 आएगा. दैट मींस अंदर फिर 12 बन रहा है. अगर पावर सॉल्व कराएंगे अगेन कुछ ना कुछ मल्टीपल ऑफ 12 इस तरह से क्या आएगा. बट 0 का तो आएगा. देखो ना 0 का तो आएगा. कैन नॉट एंड विद 0. ओके, नहीं एंड करता. 0 आएगा कब? तो 0 तो आएगा लास्ट से 10 होवे. 10 का स्क्वायर इज 100, 10 का क्यूब 1000, 10 का 4 is 10,000. मींस अगर अंदर कोई 0 वाली टर्म बन भी गई है देन 0 आ सकता है. सो 10 के फैक्टर्स की ने दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5. सो अगर 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए दैट मींस 10 की पावर स्क्वायर भी करांगे तो लास्ट से 0 आ सकता है. दैट मींस अंदर अगर फैक्टर्स 2 मल्टीपल 5 की फॉर्म ਚ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ 3 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ. ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ बट अगर 5 की फॉर्म में होवे देन लास्ट से 0 आ सकता, राइट? सो इतनी की फॉर्म च ने 2 मल्टीप्लाई 3. सो ये कभी भी 0 की फॉर्म च नहीं आ सकता. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अ नंबर कैन ओनली एंड विद 0 if it is of form 2 into 5. सो कभी भी अगर 2 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 and 5 ਮਿਲ ਕੇ 10 ਬਣਾ ਰਹੇ हैं. दैट मींस n ਤੇ 0 ਹੈ. ਨਾਓ ਇੱਥੇ 2 ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ 5 ਨਹੀਂ ਹੈ. दैट मींस ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈक्टर ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ n ਨਾਲ 0 ਨਾਲ n ਵਾਲਾ फैक्टर है. सो दिस मींस 12 पावर n cannot end with 0.
सो इसका मतलब ये है कि 12 की पावर n 0 9 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 12 की पावर जो फैक्टर सीखे वो 2 मल्टीप्लाई 3 वाले ने, 2 मल्टीप्लाई 5 वाले नहीं ने। अगर एक भी 2 हो गया एक भी 5 हो गई मैं ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि हाँ 12 के फैक्टर्स जो ने वो 0 9 होने वाले हैं, राइट। सो देखो सामने किस तरह कितना क्वेश्चन आ सकता है। शो दैट 12 पावर n you can have 6 पावर n, 8 पावर n, you can have 14 पावर n, 15 पावर n, कुछ भी आ सकता है। पावर n में एक कैन नॉट एट 0 where n is a natural number। सिंपल की करना ਤੁਸੀਂ फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अंदर प्राइम फैक्टर्स लिख दो। नाउ तो पता है अगर 0 9 होएगा तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। अगर 2 एंड 5 दोनों है मल्टीपल ਦੇ ਵਿੱਚ then ही 0 आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। एंड 12 बोल कितने भी 2 into 5 का फैक्टर नहीं हैगा, दैट मींस 12 into पावर n कैन नॉट एंड टू 0। ये सारा प्रूफ है, राइट। देखो इस सम कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ समझ आ रहा है? इजी पार्ट है, इजी सम है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सम नहीं है, बहुत इजी सम। ओके, आई होप सारे को समझ लग जाएगा। कितने जगह तो ऐसी स्टेटमेंट आ रही है 12 पावर n वाली तो कैन नॉट एंड टू 0, राइट। सो सी नेक्स्ट चलिए हम जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अबाउट इरेशनल नंबर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, रफ कर देना सर। राइट, सो ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, irrational numbers, these are numbers that cannot be written in form P over Q, where Q is equal to not equal to 0। वो नंबर्स जो कि P by Q फॉर्म दैट मींस फ्रैक्शन च नहीं लिख सकते एंड Q 0 के इक्वल नहीं होएगा, ਅਸੀਂ अगर नहीं लिख सकते दैट मींस वो इरेशनल नंबर्स। सो जिन्ने भी इरेशनल नंबर्स, जिन्ने भी प्राइम नंबर्स दे स्क्वायर रूट्स होंगे लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑफ 5 7 11 सो ऑन, बेटा सारे ही इरेशनल नंबर्स रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 मींस अंदर प्राइम नंबर्स में। एंड अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे ये नंबर्स कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे आफ्टर फाइंडिंग स्क्वायर रूट, इन्हों की कभी भी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन नहीं आएगी, इन्होंने हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। दैट मींस असं ये नंबर्स को फ्रैक्शन च नहीं लिख सकते। बट व्हाट इज अ प्रूफ, सर को की प्रूफ है तो वो प्रूफ करेंगे। एंड ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है पेपर्स विच प्रूफ पक्का आता है, तो क्वेश्चन आ सकता है प्रूफ रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूफ रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, सो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो डेफिनेशन इस तरह करने हैं, जो रख कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन इज प्रूव रूट 3 इज इरेशनल नंबर। एक ऐसा सम है जो सारे सम दे ही नंबर मिलते हैं, इस सम विच हर एक स्टेप के नंबर ने, हर एक लाइन के नंबर ने, हर एक लाइन लिखी एक अहमियत रख दी गई है इस विच। सो हर एक चीज लिखनी है आप जो इस लिख रहे हैं। फर्स्ट थिंग ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ना, ਸਾਨੂੰ पता है इरेशनल नंबर नहीं है, ਅਸੀਂ प्रूव करना है, वैसे ही है पर ਅਸੀਂ प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो ਅਸੀਂ ये मान के चलते हैं कि इरेशनल नंबर नहीं है, एक रेशनल नंबर मान सकते हैं ना आप। अगर ਅਸੀਂ कह दी रेशनल नहीं है तो एक रेशनल है, तो अगर इन रेशनल की सारी ही कंडीशन सेटिस्फाई कर देती हैं दैट मींस एक रेशनल नंबर होएगा, इरेशनल नंबर नहीं होएगा। बट अगर ये रेशनल नंबर की सारी ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकिया दैट मींस एक इरेशनल नंबर। सो फर्स्ट थिंग ਅਸੀਂ करांगे, ਅਸੀਂ अज्यूम कर लेते हैं कि अज्यूम रूट 3 इज रेशनल नंबर, कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है। सिंपल ना, ਸਾਨੂੰ पता है रेशनल नंबर्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जो ਅਸੀਂ p by tau ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬਟ ਰੇਸ਼ਨਲ तो लिख सकते हैं ना। दैट मींस रूट 3 कैन बी रिटन in form of p over q। simple conditions की ने p and q should be co-prime
P and Q साडे co-prime numbers होने चाहिए ने integers co-prime integers and Q is not equal to 0 इस हम पता ये हर एक रेशियो नंबर की कंडीशन है जो जी रेशियो नंबर कोई भी निकाल दो कोई भी फ्रैक्शन की एग्जांपल लो 3/4 5/6 5/8 कोई भी फ्रैक्शन लो दोनों नंबर्स P and Q फर्स्ट इंटीजर्स होंगे ने सेकंड और co-prime इंटीजर्स होंगे ने co-prime मींस दोनों सेम टेबल पे नहीं आते जो आप फ्रैक्शन निकालते हैं पर रिड्यूस फॉर्म निकालते हैं हमेशा लोएस्ट फॉर्म निकालते हैं लाइक अगर 5/10 हो गए फिर डिवाइड करके 1/2 लिख देते हैं व्हाट इज 1/2 1/2 इज रिड्यूस फॉर्म तो 1/2 किसी सेम टेबल पे नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 1 सो 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ co-prime ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ co-prime numbers are those number which don't have same factor ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਸੇਮ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ that are co-prime numbers so करिए स्टार्ट सो अगर ਅਸੀਂ √3 ਨੂੰ p/q ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ √3 is equal to p over q okay now do the cross multiplication q से डिवाइड हो रहा है ट्रांसपोजिंग करके मल्टीप्लाई हो जाएगा is equal to p और √3 ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ तो ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ रूट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ so what we do we square the both sides squaring both sides now √3 q square is equal to p square करो स्क्वायर √3 अलग स्क्वायर होएगा q का अलग होएगा ये याद रखियो अगर ब्रैकेट में स्क्वायर क्या है ना ब्रैकेट से जितने एलिमेंट्स होंगे ना सारे वाला अलग स्क्वायर होता है so √3 square is 3 समझे √3 square means √3 multiplied by √3 so it is 3 सेम रहेगा रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आंसर ही आएगा तुम्हें so 3 q square is equal to p square right now अगर 3 q square ਨਾਲ मल्टीप्लाई हो रहा है आफ्टर ट्रांसपोजिंग 3 p square ਨਾਲ क्या होगा डिवाइड हो जाएगा सिंपल थिंग ना फर्स्ट की कितना p/q फॉर्म से लिख देता देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी देन स्क्वायरिंग की थी ताकि रूट खत्म हो सके रूट खत्म करने के बाद ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ √3 square is 3 q square is q square then ट्रांसपोजिंग कर देती है p square divided by 3 so इस तो ये पता लगता है p square is divisible by 3 सिंपल थिंग ना p square 3 डिविजिबल हो रहा है देख p square को 3 आप डिवाइड कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स सारे मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स ने कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ना तो नंबर भी डिवाइड होएगा सोचो किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर का डिवाइड हो रहा है लाइक इसमें क्या करते हैं 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है व्हाट इज 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज व्हाट इज 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25 so if I say 5 square can be divided by 5 तो 5 में डिवाइड हो सकता है 5 में 25 राइट तो इसका मतलब ये है कि अगर इसे स्क्वायर ना भी करिए अगर मैं 5 का स्क्वायर ना भी करता सिंपल 5 डाल दूंगा तो 5 भी 5 में डिवाइड हो जाएगा ओके दैट इज यूक्लिड प्रिंसिपल्स आर यूक्लिड के प्रिंसिपल्स ने कुछ अर्थमेटिक के प्रिंसिपल्स ने कि अगर किसी चीज का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है दैट मींस सिंपल विदाउट स्क्वायर चीज भी डिवाइड होएगी तो इसको अगर p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होएगा दैट मींस p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 ओके अगर p स्क्वायर 3 डिवाइड हो रहा है p भी डिवाइड होएगा ना अगर डिवाइड हो रहा है देखो अगर 5 5 डिवाइड हो रहा है आंसर क्या आएगा आंसर इज इक्वल टू 1 आंसर आएगा सो अगर p डिवाइड हो रहा है 3 नाल तो कोई ना कोई आंसर आएगा बट हम नहीं पता कि वेरिएबल क्या है सामने इस चीज का अंदाजा नहीं है वी डोंट नो व्हाट इज द वेरिएबल वैल्यू सो व्हाट वी डू सारा आंसर भी वेरिएबल से साइन कर दो कि एक अननोन वेरिएबल नवा है सपोज वेरिएबल इज c अगर p ਨੂੰ 3 डिवाइड करना है आंसर आएगा c आएगा से p/3 is equal to c राइट अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो p is equal to 3c आ जाएगा नाउ इस p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 फिल दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 put value of p in equation number 1 करिए so put p in equation number 1 we have q square is equal to 3c square over 3 again square root open करा हमें that is 9c square over 3 cutting करा हमें that is 3 into 3 is 9 so we get q square is equal to 3c square देखो सेम इक्वेशन ही मानना 3q square is equal to p square then q square is equal to 3c square
राइट। तो ਅਸੀਂ दोबारा लिख सकते हैं, we can write c square is equal to q square by 3, सेम चीज। फर्स्ट की कितना सीगा रूट 3 p by q लिख देता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयर ओपन किया, 3q square is equal to p square आ 3 ਨੂੰ ट्रांसपोज किया, p square ਦੇ नीचे लेके, so we can write p square is divisible by 3, so p is divisible by 3, then आंसर है कुछ, लेट द आंसर इज c, ओके। सो मल्टीप्लाई किया, इस p की वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन से फिल की, वैल्यू फिल की, अगेन स्क्वायर ओपन किए, कटिंग किए, तो देख रहे हैं सेम इक्वेशन फिर बन रही है, बट वेरिएबल्स जस्ट डिफरेंट। अगेन ट्रांसपोजिंग की c स्क्वायर q स्क्वायर बाय 3, तो इन्हें तो की पता लग रहा है सेम है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ऐसी समझ लग रही ना कि q स्क्वायर में 3 डिवाइड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अगेन प्रिंसिपल q इज डिविजिबल बाय 3, तो अगर q स्क्वायर हो रहा है देन q भी डिविजिबल हो जाएगा, सेम थिंग। अगर q स्क्वायर हो रहा है तो p होएगा, q स्क्वायर हो रहा है तो q होएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ देखो रिजल्ट देखो ना, सो द p भी डिविजिबल हो रहा है ना, p इज आल्सो गेटिंग डिवाइड बाय 3 एंड q इज आल्सो गेटिंग डिवाइड बाय 3, दैट मींस p ਤੇ q ਦੇ सेम फैक्टर्स आ गए, p ਦੇ q ਕੋਲ सेम फैक्टर्स आ गए, दैट इज 3 बिकॉज़ दोनों 3 टेबल ਨਾਲ डिवाइड हो रहे हैं। बट ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਨੰਬਰਸ which are co-prime numbers, co-prime means they do not have same factors, okay। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ सेम फैक्टर्स नहीं होंगे, बट रिजल्ट शो कर रहा है कि सेम फैक्टर्स है कि नहीं, दैट मींस √3 साडा एक रेशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल नंबर है, ओके। सो इधर लिखेंगे p and q has same factors, okay, but this is our contradiction, this is contradiction, as p and q are co-prime, because p ਦੇ q co-prime ने, इस करके दोनों के सेम फैक्टर्स नहीं हो सकते, दैट मींस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये सारा प्रूव देखो देखो समझो इसका प्रूव करना सीगा √3 इरेशनल नंबर है, ਅਸੀਂ अज्यूम कर लिया ओके नहीं है, इरेशनल नहीं है, एक रेशनल नंबर है, ओके। अगर रेशनल है तो कंडीशन सैटिस्फाई करेगा रेशनल की कंडीशंस ने कि √3 से p by q फॉर्म से लिख सकते हैं, p by q should be co-prime integers and q is not equal to 0, at तीन कंडीशंस में p by q फॉर्म, p q are co-primes, q not equal to 0, देन लिख देता, अगर है तो लिख दो √3 is p by q, लिखता ना q डिवाइड ट्रांसपोजिंग मल्टीप्लाई √3q is equal to p, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √3q स्क्वायर is equal to p स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर करांगे 3q स्क्वायर is equal to p स्क्वायर, ट्रांसपोजिंग कितनी वी गेट p स्क्वायर ओवर 3, सो तो ये मालूम पड़ता है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, का रिजल्ट क्या आ गया कि p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 देना, देन अगर p स्क्वायर हो रहा है तो p भी होएगा, मैथमेटिकल रीजन। सो अगर p डिवाइड होएगा तो कोई ना कोई आंसर भी आएगा, अगेन मैथमेटिकल रीजन। नाउ बिकॉज़ p द अननोन है, ਸਾਨੂੰ p ਦੀ वैल्यू नहीं पता, सो आंसर भी अननोन आएगा, राइट। सो अननोन आंसर की है c, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ a b c d f ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ओके। ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ x by y ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, a by d ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨਸੈਪਟ याद रखो सारा कुछ। p is equal to 3 cr is the value स्टिक फिल की फर्स्ट इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ, स्पेस ओपन ਕੀਤੇ 9c स्क्वायर ओवर 3 कटिंग होगी, ये आएगा q स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर, राइट। सो फिर की फॉर्म बन गई c स्क्वायर q स्क्वायर बाय 3, अगेन q स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 3 ਦੇ ਨਾਲ, अगर q स्क्वायर हो रहा है तो q भी होएगा, दैट मींस p भी डिवाइड हो रहा है 3 ਨਾਲ, q भी हो रहा है, दैट मींस दोनों को सेम फैक्टर्स हो गए, अगर दोनों ही 3 डिवाइड हो रहे हैं दैट मींस दोनों को सेम फैक्टर्स हो गए, बट co-prime numbers को सेम फैक्टर्स नहीं होते, तो co-prime इंटीजर्स को सेम फैक्टर्स नहीं होते, सो दैट इज अवर कॉन्ट्राडिक्शन। जो ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ they are rational numbers, ये ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ये गलत हो गया। सो अगर ये गलत हो गया तो सही क्यों होएगा, दैट इज √3 is an irrational। अगर मैं सारा कुछ लिख रहा है ना, मैं कुछ स्किप नहीं किया बेटा, सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन दे हर एक चीज लिखਣ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਰਾਈਮ ਲੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਕੋਪਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, अगर कॉन्ट्रडिक्शन देनी है किस ਨੂੰ ਦੋਗੇ, कुछ ਲੈਟ ਤੇ ਕਰੋ, पर ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਲਿਖਿਆ हर एक इंपॉर्टेंस रखती है,
हर एक नंबर के मार्क्स मिलते हैं कोप्राइम नंबर्स एंड इस लिखण दे फिर डिविजिबल बाय लिखण दे नवी इक्वेशन बनाने दे इसको पुट करने दे नंबर्स दोबारा लिखण दे फिर दसन दे कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं दैट मींस दो आर नॉट कोप्राइम नंबर्स बट असि लेट कीता सीगा दोनों की ने कोप्राइम नंबर्स हैव अ लुक ऑन दिस देखो आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए बिकॉज बहुत ही सिंपल टॉपिक है ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜੋ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ टीईटी डिवीजन बाय 3 तक चल रहा है सेम प्रोसीजर ही आगे चल रहा है स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते राइट सो ए सीगा हमारा टॉपिक प्रूव दैट नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स सो बेसिक लेवल का टॉपिक सीगा सिंपल अगर √3 इज इरेशनल आ जाए √5 आ जाए √6 आ जाए √7 आ जाए तो सिंपल सॉल्व कर सकते हैं ओके बट थोड़ा टफ कर दिया तो थोड़ा टफ ही पता होना चाहिए कि टफ किस तरह आ सकते हैं सर आप कर देंगे टफ आ सकता है कि √3 की जगह लिख देंगे वो प्रूव दैट √a इज एन इरेशनल नंबर √3 जगह लिख देंगे प्रूव दैट √a इज एन इरेशनल नंबर where a is prime number जिथे a की है एक प्राइम नंबर ओके सो बिल्कुल डरना नहीं सम को देख के सेम सम पुराने तरीके नाल ही होना है सारा कुछ सेम चलेगा बस इतने आप √3 लिखते जा रहे थे ना तो आप √a लिखना सेम प्रोसीजर है सेम सम है कोई तो टेंशन लेने की लोड़ नहीं है हाँ आ सकता है बिकॉज ये जनरल सम इक्वेशन होंगे वेरिएबल्स वाली सारी जनरल इक्वेशन होंगे आ सकती हैं पर तुम सेम प्रोसीजर वही करना सिंपल तुम लिखोगे ओके √a कैन बी रिटन एज p by q ओके √a into q is equal to p अगेन स्क्वायरिंग स्क्वायर करोगे a q square is equal to p अगेन q square is equal to p square by a that means अगर p square is divisible by a it means p also divisible by a so अगर p is divisible by a तो कोई आंसर आएगा c सेम थिंग पुराने वाली आंसर c आएगा अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कितना p is equal to ca इक्वेशन नंबर 1 विच फिल कितना q square is equal to ca square over a is equal to c square a square over a नाल 1 पावर कट होगी आंसर इज q square is equal to c square a अगेन a इधर मल्टीप्लाई ट्रांसफर में डिवाइड करेगा q square by a सेम थिंग आ गई अगर q square हो रहा है तो दैट मींस q भी होएगा q is divisible by a तो सेम थिंग दोबारा हो यहाँ पर √3 बार लिख दीजिए now अगर q a ना हो रहा है p a ना हो रहा है दैट मींस दोनों को सेम कॉमन फैक्टर है बट o का प्राइम इंटीजर्स को सेम फैक्टर नहीं होंगे तो दिस इज आवर कॉन्ट्रडिक्शन राइट देखो सेम सम है सेम फॉर्म है बस वेरिएबल्स दे देंगे अंदर तो सी तैयारी अपनी पूरी रखनी है तैयारी बेटा आप 100% भी रखनी है ओके तो ये नहीं कहते मैं ये चैप्टर कर लांगे तो पास हो जाऊंगा नहीं प्रॉपर तैयारी 100 मार्क्स की तैयारी रखेंगे फिर ही ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा कि हां 100 जो कितने से अटेम्प्ट कर पा रहे तैयारी प्रॉपर रखनी है देखो एक क्वेश्चन समझ लगी है क्लियर राइट सो नेक्स्ट एक सम हो ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ then ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਨ ਸਮ ਲਿਖਦੇ sum can be prove 2 plus 3√5 is an irrational number given that √5 is irrational. Solution. They are saying कि A शो करो कि 2 plus 3√5 एक irrational number है बट तो ऑलरेडी सी दे देता कि √5 एक irrational है it is an irrational number एंड ਸਾਨੂੰ प्रूफ करने की लोड़ नहीं ਤੁਸੀਂ जो सारा ही कॉन्सेप्ट किया ना उन्हें तो अगर इस तरह स्टेटमेंट आ जाएगा वो प्रूफ करने की लोड़ नहीं बट अगर तो ये स्टेटमेंट नहीं आती तो गिवन नहीं मिलता तो फर्स्ट ही सारा ही प्रूफ करांगे √5 वाला कॉन्सेप्ट देन जो तो करा रहा है वो करा
तो सेम थिंग अज्यूम कर लो, अज्यूम 2 plus 3 to 5 is rational. So if they are rational, we can write them in p by q form. लिख सकते हैं where p and q are co-prime numbers, co-prime integers, and q is not equal to 0. Same thing, है ना? देखो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कुछ ऐसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, कुछ आप स्क्वेयरिंग ऑल साइड्स नहीं करनी, सिंपल √5 नु सिंपलीफाई कर दो, √5 को सिंपल रहने दो, बाकी सारे नंबर्स ट्रांसपोज कर दो राइट साइड। सो देखो 2 प्लस हो रहा है तो जाके ट्रांसपोज हो गए, माइनस हो जाएगा pq माइनस 2, 3 डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज हो गए, डिवाइड हो जाएगा p by q माइनस 2, राइट। अगर आप एलसीएम सॉल्व करिए p माइनस 2q ओवर 3q, p माइनस q ओवर 3, ओके, ये किसके बराबर आ रहा है? दैट इज इक्वल टू √5। अब इसमें एक सेकंड में इसी भूल जाने ये नंबर है, सिर्फ राइट साइड देखो p माइनस 2q ओवर q, असली ये लेट कितना कि p q की है इंटीजर्स में, अगर किसी दो इंटीजर्स में प्लस या माइनस किया जाए तो क्या आएगा? किसी दो इंटीजर्स में प्लस या माइनस किया जाए तो क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा ना, 5 जो 3 के 2 माइनस 3 जो माइनस 5 माइनस 8, कुछ भी करांगे इंटीजर ही आएगा, मींस दो इंटीजर्स में प्लस माइनस करांगे इंटीजर आएगा, देन जो इंटीजर आएगा उसको डिवाइड करांगे किसी इंटीजर नाल फिर इंटीजर आएगा, दैट मींस दिस होल नंबर इज इक्वल टू इंटीजर अकॉर्डिंग टू सिंपल जो assumption सी होल नंबर किस दे इक्वल बनना है? एक इंटीजर दे, बट ਅਸੀਂ ਨੂੰ किस दे को शो कर देता √5 की, √5 की इरेशनल नंबर ऑफ इंटीजर्स कहने, इरेशनल नंबर ऑफ इंटीजर्स वाले बंदे, दैट मींस अगर इसमें अपन इंटीजर्स कह रहे हैं खुद उस किदे इक्वल है, दैट इज इक्वल टू √5 नंबर डॉट इरेशनल, दैट इज जो इंटीजर्स कह रहे हो गलत चीज है, दीस आर नॉट एन इंटीजर्स, they are equal to an irrational number, that means the whole equation, that means this equation, this number 2 plus 3 to 5 is an irrational number। समझिए पढ़िए, prove 2 plus 3 to 5 is an irrational number given that √5 is rational, √5 irrational already given है, तो ये शो करना कि √5 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ प्लस हो रहा है वो भी इरेशनल होएगा, तो सेम कांसेप्ट ऐसे करते हैं कि हाँ जी assume this is rational, rational means can be written p by q form, p and q are co-primes, q not equal to 0, okay, then ट्रांसपोजिंग कितनी 2 प्लस हो गया माइनस हो गया 3 मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम लेके कि नंबर आ गया, हम सब पता है बिकॉज़ ਅਸੀਂ ऑलरेडी क्या p q इंटीजर्स ने, सो सारा ही सॉल्व करके आंसर आएगा इन इंटीजर, answer will be in integer but it is the equivalent, that is equal to √5, that is irrational number, irrational number के इंटीजर्स नहीं ना होते, सो इसका मतलब ये है कि जो ਅਸੀਂ इंटीजर कह रहे हैं गलत चीज, it is a contradiction, it is not an integer, it is a irrational, बस इधर दो कॉन्सेप्ट, इधर सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो किसी का चैप्टर ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਚੈप्टर ਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ बट देख लो। फर्स्ट थिंग ऐसी कितनी रियल नंबर्स सारे टाइप्स, देखो नेचुरल नंबर्स आ गए ना, ये इतने भी लिया है दो 6 की पावर n वाला कितना 6 पावर n where n is natural, आ गए ना नेचुरल नंबर्स, सो नेचुरल नंबर्स की क्लैरिटी, देन होल नंबर्स, ओके, देन इंटीजर्स, इंटीजर्स आर इन रेशनल इरेशनल, फिर ऐसे ऐसे अपन एलसीएम कितना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वेरिफिकेशन भी की है एंड एग्जांपल्स भी कि फंडामेंटल थ्योरम किस तरीके नाल आ सकता है, राइट। उस तो बाद साडा आज दा टॉपिक फर्स्ट इरेशनल नंबर्स कितने, इरेशनल नंबर का सारा प्रूफ कितना है, अगर सिंपल प्रूफ करना फाइंड √5 is irrational or not, you have to do a whole thing that we have done in the previous topic, okay, simply that assume √5 is irrational, p by q form, then cross multiplication, squaring सारा करके उसी को कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर हम ऑलरेडी गिवन है कि इरेशनल है then ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ओके, दोनों हो गए एंड लास्ट इसकी तरह 6 पावर n 12 पावर n वाला कॉन्सेप्ट जो है 0 में हो गया कि नहीं, राइट स्टूडेंट्स। सो इज योर टॉपिक फॉर टुडे, ओके, कुछ होमवर्क तो हम दवांगा लास्ट पे स्लाइड तो होमवर्क होएगा, बट ये सारा कुछ ही है जो ਤੁਸੀਂ
रिवाइज फर्स्ट चैप्टर जो करना बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में प्योर नंबर्स ने कुछ नहीं है इस चैप्टर में सिर्फ नंबर्स ही मिलते हैं इस चैप्टर में ऐसे वैसे करोगे एक नंबर दो नंबर एमसीक्यू आएगा मेरा फ्री दे नंबर रूट 3 इरेशनल बहुत औखा टॉपिक है इरेशनल नंबर जब पता है कि आना ही आना चीज पता है कि रूट 5 इरेशनल आ ही सकता है बेसिक वाला तो पता है कि स्टैंडर्ड वाला पता है कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ रूट 5 इज इरेशनल हम गिवन दे सकते हैं तो हम कहेंगे नहीं गिवन नहीं है सिंपल प्रूफ करो तो स्टैंडर्ड को की करना पड़ेगा फर्स्ट ही सारा प्रूफ करना पड़ेगा देन बस लास्ट दो लाइंस को लिखने हैं राइट सो सारी ही तैयारी करनी है ओके सो ऐसा टॉपिक सीखा हम होमवर्क आने का लास्ट और देख लो तुम ट्राई जरूर करो ओके सो थैंक यू क्लास थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू स्टूडेंट्स एंड प्लीज ज्वाइन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ओके बाय क्लास थैंक यू